Hello students, today we will discuss about our next topic, the second one, reforms which has been taken by the government in order to promote our our agriculture sector, which is the green revolution. Up to the previous topic we have studied about the major goals of the 5-year plans, as well as we have studied about the topic of the major policy has been implemented by the government on the different important sectors of the economy, in which we were studying about our first sector, which was the agriculture, and we have studied about the first one step taken by the government, that was the land reforms, under which the government has taken the steps of land sealing, the ownership of land holdings, and the abolition of intermediaries. Now the major one step which has been taken by the government in order to promote the agriculture, that was the green revolution. Okay, now we will discuss in detail about the concept of the green revolution. As per this notes, we can say at the time of the independence 75% of the country population was depend on एग्रीकल्चर, कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 75% पॉपुलेशन क्या थी, हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी. एज वेल एज आर प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर वाज आल्सो वेरी लो. इट मीन्स द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस as per hectare of land, that was also very low. Generally what was going on, the old technology was going to be used by the farmers, as well as the rest of the infrastructure was also not available. तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, इट वॉज मेनली डिपेंड अपॉन मानसून, और अगर किसी सीजन में ऐसा हो जाता था दैट द मानसून फेल शॉर्ट, द फार्मर्स वर नॉट एबल, इवन they were not able to get their crops in that season, because they were also not having the proper irrigation facilities, which were only the little bit farmers were there जिनके पास कुछ little bit irrigation facilities भी थी. During the time period of colonial rule, we can say कि हमारा जो agriculture sector था, that was going to be reduced in a declined manner. Backwardness was there. And in order to promote this sector, what the government did, they just taken the one of the important step was green revolution. Now we will discuss about what do you mean by the green revolution. Green revolution, simply it refers to the increase in the production of the agriculture, especially in case of the food grains, with the help of the uses of HYV seeds. HYV means high yielding variety seeds, and specially for the food grains means specially for the wheat and rice. एंड द यूज़ ऑफ दीज सीड्स, मेनली अगर इन सीड्स को यूज़ करना था तो इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत थी, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट क्वांटिटी, कि एक तो क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, एज वेल एज द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. इट मीन्स कि जो वाटर था वो पहले से बहुत ज़्यादा चाहिए था. द नीड फॉर दीज इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शनेट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि ये जो भी इनपुट है, इधर द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज वाटर, इट मस्ट बी इन अ प्रॉपर proportionate. The farmers who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities, as well as the financial resources to purchase fertilizers and pesticides. इट मीन्स कि जो भी फार्मर्स थे जो HYV सीड्स के बेनिफिट को उठाना चाहते थे, विच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स वॉज देयर, रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज़, एक तो प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ हो, एज वेल एज उनके पास अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हों जिससे वो क्या कर सके, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को परचेज कर सके. सो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases, जिसकी वजह से क्या किया गया कि फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन, विच वाज द टाइम पीरियड मिड ऑफ द 1960s टू 1970s, HYV सीड्स क्या किए गए, स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किए गए, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. फर्दर जो HYV सीड्स थे, इनसे बेनिफिट हुआ वीट ग्रोइंग रीजन्स में. तो सेकेंड फेज में क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1970s टू 1980s. HYV टेक्नोलॉजी जो थी वो लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्रेड कर दी गई, एंड इट नो डाउट इट ऑल्सो बेनिफिटेड टू द मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, नॉट ओनली द व्हीट और द राइस. द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, इससे क्या हुआ
Now the India has been enabled to achieve self sufficiency in food grains. It means कि जो हमारा 5 year plans में goal था self reliance, it could also be achieved. Now we didn't depend upon the America for getting the food grains. या किसी भी nation पे हम depend नहीं थे. We can meet our own nation food requirement at our own level. Now ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ इम्पॉर्टेंट. नो डाउट वी कैन से कि एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बट ये सिर्फ एनफ नहीं था. अगर हमें लार्ज प्रोपोर्शनेट जो था इसका इंक्रीज़ किया गया था इज़ कंज्यूम्ड बाय द फार्मर. अगर ऐसा होता जैसे दे आर सेइंग कि सिर्फ ग्रोथ करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं था, कि अगर ऐसा होता कि जितनी भी मेजर लेवल पर क्रॉप्स को इंक्रीज़ किया गया उसका लार्ज प्रोपोर्शनेट अगर फार्मर्स खुद ही कंज्यूम कर लेते देमसेल्फ रेदर देन सेलिंग इट इन द मार्केट, तो हायर जो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ था ये किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस जो है इकोनॉमी में क्रिएट नहीं करता. और ऑन द अपोजिट साइड अगर मेजर प्रोपोर्शनेट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो मार्केट में सेल ऑफ कर दिया जाएगा फार्मर से, तो हायर आउटपुट क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन द इकोनॉमी. द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट में सेल किया जाता है, द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स विल बी टर्म्ड एज मार्केटेड सरप्लस. इट मीन्स कि जितनी भी उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस की उसका जो प्रोपोर्शनेट उन्होंने अपने लिए रखा दैट इज सफिशिएंट. रेस्ट वन विच इज सोल्ड बाय देम इन द मार्केट विल बी टर्म्ड एज मार्केटेड सरप्लस. फॉर्चुनेटली नो डाउट हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट जो थे हनुमंता राव, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो ग्रेटर प्रोपोर्शनेट था राइस का और वीट का ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड अवेलेबल वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस थे फूड ग्रेन्स के, नो डाउट ड्यू टू द इंक्रीज इन द सप्लाई इट गोज रिड्यूस्ड. इससे क्या हुआ रिलेटिवली टू द अदर आइटम ऑफ कंजम्पशन. तो इससे क्या बेनिफिट आया, द लो इनकम ग्रुप जो पुअर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे जो अपनी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन क्या करते थे फूड ग्रेन्स पे स्पेंड कर देते थे, दे वर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन द प्राइजेस. उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला. एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इट ऑल्सो इनेबल्ड द गवर्नमेंट. ग्रीन रेवोल्यूशन से ये भी बेनिफिट आया कि गवर्नमेंट अब क्या कर सकती थी, फूड ग्रेन्स को परचेज करके अपने पास बफर स्टॉक में रख सकती थी विच कुड बी यूज्ड इन द टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज. कि अगर कोई इमरजेंसी इकोनॉमी में आ जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम the food grains can be used. While the nation had immensely benefited from the green revolution. नो डाउट हम कह सकते हैं कि हमारा नेशन जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत बेनिफिट हुआ, बट जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर नो डाउट इफ वन थिंग इज़ गिविंग अस अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, नो डाउट देयर इज़ ऑल्सो एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम रिस्क. तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या था, इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स. इसमें क्या हुआ था कि इसने स्मॉल और बिग फार्मर्स में एक डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे. कैसे, क्योंकि सिर्फ बिग फार्मर्स ही थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट लाइक द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, द प्रॉपर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ कुड बी अफोर्डेड बाय द बिग फार्मर्स. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मोर ओवर ये भी हुआ जो HYV क्रॉप्स थे वो जल्दी पेस्ट से अटैक हो जाता था उन पे, एंड द स्मॉल फार्मर हु वर अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी दे जस्ट कुड लूज एवरीथिंग इन ए पेस्ट अटैक. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, फॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया. इस काइंड का कोई फियर एग्जिस्टेंस में नहीं आने दिया गया, ड्यू टू विच रीज़न दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम काइंड ऑफ स्टेप. विच काइंड ऑफ स्टेप, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन प्रोवाइड किया किस पे, लो इंटरेस्ट रेट पे टू द स्मॉल फार्मर्स, एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड किए गए स्मॉल फार्मर्स को, जिससे कि उनको जो रिक्वायर्ड इनपुट है दे कैन गेट. सिंस द स्मॉल फार्मर अब वो रिक्वायर्ड इनपुट ले सकते थे, तो जो आउटपुट था स्मॉल फार्मर्स का इक्वेट द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो वो बराबर होना चाहिए था. एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, इट बेनिफिटेड द बोथ स्मॉल एज वेल एज द रिच फार्मर्स ऑल्सो. जो रिस्क था स्मॉल फार्मर्स का दैट वाज रिमूव्ड
When pest attacked their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institution established by the government. जो एक डर था स्मॉल फार्मर्स का कि उनकी क्रॉप्स को पेस्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे, उसको भी रिमूव कैसे किया गया कि गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसमें टाइम टू टाइम रिसर्च की जा रही थी इन ऑर्डर टू रिमूव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. उससे भी क्या हुआ, स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट मिले. नाउ वी शुड नोट दैट कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सिर्फ स्टिल वी कैन से देयर इज़ अ डिबेट कैन बी देयर रिगार्डिंग दिस कि अगर स्टेट किसी भी तरीके का कोई रोल प्ले ना करती सपोज, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स के ही बेनिफिट में होता rather than the small farmers. We can say कि small farmers जो थे वो इस चीज़ से benefit में नहीं आते. We will discuss about the debate over subsidies tomorrow or in our next lecture. So up to this topic you will have to study about the topic of green revolution in detail.